آج ہم لوگ جس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں بہت اہم موضوع ہے اور کافی اور فکر کرنے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو کچھ کام اس طرح سے کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم لوگ مل کے اس کام کو انجام دیں گے۔ اصل میں ماہ محرم نزدیک ہے، آ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم لوگ اپنے صحیح کر سکتے ہیں اس محرم کو اگر ایک فرصت سمجھیں، ایک فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھیں تب۔ اسی لیے ایک پروگرام اس طرح سے کچھ سیریز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے اہمیت جس کی ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، وہ یہ ہے کہ آپ کبھی اس بات پہ غور و فکر کریں، ماشاء اللہ ہماری قوم پہلے کے مقابلے میں پہلے بہت سے لوگوں کے پاس شکوے شکایت تھے، مولانا نہیں ہے ہمارے پاس، عالم کم تھے، راستوں کی مشکل تھی، سواریاں نہیں تھی، بہت سے علماء بہت مشکلوں کے ساتھ کہیں پہنچتے تھے۔ اب زمانہ وہ ختم ہو گیا، تقریباً ہر علاقے میں عالم دین پایا جا رہا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو آج اچھے اچھے گروپس انٹرنیٹ کی دنیا پر اچھی اچھی ٹیم انٹرنیٹ پہ مٹیریل اور دینی مطالب کو پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے کے مقابلے میں اب یہ مشکل کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یہ کم ہو گئی۔ ظاہراً سب کے پاس موبائل ہے اور موبائل سے وہ اچھی چیزوں کی طرف جا سکتے۔ یہ تو ایک دم سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اب سوال ہم لوگ اپنے آپ سے کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے سے زیادہ اس زمانے کے مومنین کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ رسول خدا کے زمانے کے اگر صحابی یہ کہیں کہ یا نبی اللہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، اس زمانے میں اگر سواری کرنی بھی ہے تو گدھا سواری ہے یا گھوڑا ہے، کہیں پہنچنے کے لیے کئی کئی سال لگتے ہیں، کئی مہینہ لگتا ہے، تو وہاں دین پھیلنے کے لیے امکانات کم تھے۔ ایک لیٹر یہاں سے چلا، ابھی بھی جن لوگوں کو 25-20 سال پہلے کی باتیں جو لوگ خط و کتابت کی دنیا جانتے ہیں، وہ ایک مہینہ پہلے خط بھیجا، اور بہت سے بزرگ علماء کی داستان آپ سنیں گے کہ خط جب آتے تھے تو اٹھا کے رکھ دیتے تھے، جب سارا اگزام دے کر جب فری ہوتے تھے تب ایک ایک خط اٹھا کے پڑھتے تھے، تو پتہ چلا 3 مہینے پہلے جو خط آیا تھا اس میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اب وہ آج رو رہے ہیں۔ اس لیے کہ بیچ میں اب وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، تبھی وہ ایک مقام پر اور ایک مبلغ کی حیثیت اور بہترین عالم دین قرار پائے۔ اس طرح کی قربانیاں ان لوگوں نے دی۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو پہلے کے مقابلے میں ہماری اس زمانے کی جنریشن تو زیادہ اہم ہو جاتی ہے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، کام کاج کے اعتبار سے، دینی مطالب کے اعتبار سے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ ہمیں دین پہنچانے والا نہیں ملا، دین سمجھانے والا نہیں ملا، تو شاید آج کا زمانے کا جوان وہ اس کا جواب اس سوال کو کر بھی نہیں سکتا، کرے گا تو خود اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ اسے جواب اس کے ذریعے مل جائے گا۔ بہت سے کام ہر زمانے میں پہلے کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں۔ اب ہم لوگ اگر غور و فکر کریں تو ہمارے پاس دینی مطالب ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ہم جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ افراد بہت سے ایسے ہیں کہ جو بہت جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، مگر ایک علم حاصل کرنا ایسا ہے کہ خود سیکھا، خود ڈاکٹر بن گئے مگر سماج کے کسی کام کے نہیں، خود انجینئر بن گئے سماج کے کسی کام، انجینئر بس وہ اپنے کام دھام سے وہ کام رکھا، دین کی خدمت کا جو معاملہ ہے یا دینی مطالب کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے، وہ بس ایک اپنے آپ کو میں نے یہ سیکھ لیا، متقی اسے کہتے ہیں، تقوی اسے کہتے ہیں، اور یہ ایسا ہے وہ ایسا۔
اگر ہم غور و فکر کریں تو اس زمانے میں معلومات اور انفارمیشن کا انبار ہمارے ذہن میں ہے، ہر ٹاپک پہ مٹیریل موجود ہے، نہیں بھی ہے تو موبائل سٹ سٹ ایک دم کچھ ڈالا اور فوراً کچھ نہ کچھ آ گیا، یعنی ہر چیز۔ مگر مشکل یہ ہے، کبھی ہم سوچیں کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، اس کے باوجود ہم ایک جگہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ پہلے کے مقابلے میں ہمیں تو زیادہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہیے پہلے کے مقابلے میں۔ جیسے پچھلے زمانے والے اگر یہ کہیں کہ بھائی بہت مشکل سے کانپور میں ہم نے ایک انجمن بنائی تھی مثال کے طور پر، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کانپور والے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے، اور جانا آنا اس طرح سے رشتہ داریاں اور یہ سب نہیں تھی۔ مگر آج کے زمانے میں ایک انجمن اگر صرف کانپور میں محدود رہ جائے، حالانکہ یہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو اب تو ایک آپشن زیادہ ہے نا کہ آپ ایک ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کے تمام انجمنوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ تو آج کی انجمن اگر صرف، یا ہم آپ کوئی بھی اگر صرف ایک جگہ پر محدود رہ جائیں تو پھر شاید جواب دینا بہت سخت ہوگا جب ہم سے سوال ہوگا۔ ہمارے پاس مطالب بہت آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، مگر اس کے باوجود ہم کہیں کھڑے نہیں ہو پائے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی ذہن میں آیا؟ مجلسیں ماشاء اللہ پہلے کے مقابلے میں کثرت سے ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہم لوگ کثرت سے ہیں، تبرک ماشاء اللہ پہلے کے مقابلے میں، مگر ہم کیوں ایک جگہ نہیں ہو پا رہے ہیں؟ جی، بہت اچھا۔ یعنی آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ، اگر ہم چھوٹی چھوٹی کمپنیوں پہ کام کر دیکھیں، آج ہر کمپنی ایک چھوٹا سا نرما بنانے والا، وہ اپنے کاموں کو لے کر اتنا سیریس ہے کہ ہر چیز کے اوپر پلاننگ ہے اس کی، میرے کتنے لوگ ہوں گے، اس میں ہیڈ کون ہوگا، اس کے نیچے کون لوگ ہوں گے، ورکر کون لوگ ہوں گے، مال سپلائی کیسے ہوگا، فیکٹری میں بنے گا کیسے، انکم کتنی ہوگی، کتنا ریٹرن میں آیا نہیں آیا، کتنا نقصان ہوا۔ ایک چھوٹا سا صرف بنانے والا، نمک بنانے والا، سوئی بنانے والا، سب ایک پلان کے تحت چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد، اچھا آپ دیکھیے، جو لوگ بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں دنیاوی معاملات کو لے کر، وہ ایسا کچھ ان کا کورس نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کہیں ریگولر ان کے مذہب کے تحت یا کوئی ان کی پلاننگ کے تحت ہر روز ایک جگہ بلا کے بتایا جائے کہ دیکھو تم اگر لوگوں کے ساتھ رہو گے، لوگوں کے بارے میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کوئی کورس نہیں کرایا جاتا۔ مگر شیعہ قوم بہت اچھی ہے، کس اعتبار سے؟ ذہن میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تمہیں اکیلے سے نکل کر لوگوں میں آنا ہے، چاہے وہ نماز جماعت، نماز جمعہ، عزاداری، مجلس، ماتم، یہ دیکھیے کوئی بھی کمپنی اس طرح کا آپشن اس کے پاس نہیں رہتا ہے کہ ایک ساتھ اس کو 10,000 کا مجمع مل جائے اور جس میں وہ اپنے پروڈکٹ کو ذکر کرے۔ وہ چن کے 10 لوگوں کو لے کے آتا ہے، وہ لوگ کام کرتے ہیں، پھر وہ مارکیٹنگ کا معاملہ صحیح کرتے ہیں، پھر لوگوں میں اترتے ہیں، یعنی 10 لوگ آ کر پورا اس طرح سے کام کرتے ہیں، 10 لوگ آ کر اس طرح سے کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ یعنی ہم کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، کئی کروڑ مولا حسین کے نام پہ خرچ ہوتا ہے، کئی کروڑ لوگ اداروں میں خرچ کر رہے ہیں، مگر نتیجہ، آؤٹ پٹ ہمارا کہیں ایک اچھا آؤٹ پٹ کیوں؟ اس کی اصل وجہ، ہم نے جو دین لیا ہے نا، وہ ہم نے دین جو لیا وہ سیکولر دین لیا ہے۔ ہم نے جو دین لیا ہے، ہم نے جو تعریف دین کی ہے نا، ہماری دین کی تعریف یہ ہے کہ مجھے اکیلے متقی بننا ہے، مجھے سماج سے کوئی لین دین نہیں، ہمیں اکیلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں سماج سے کوئی لین دین نہیں، ہمارا رول سماج میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ ہر روز 5 ٹائم مسجد میں جمع ہونے والے افراد سماجی کام میں کہیں نہیں ہے،
اور जब अपना समाज में कोई पकड़ नहीं है तो नतीजा क्या होता है, जब समाज को वोट देने की बात आती है तो खुद हमारा वो समाज मिसयूज कर लेता है, इसलिए कि हमारी खुद कहीं कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई, सबने दीन को बस अकेले अच्छे हो गए, कामयाब है, जन्नत में पहुंच जाएंगे। इसका नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि हर घर वाले, जब हर घर में आप चले जाइए, मेरा बेटा बहुत दीनदार है, 5 वक्त का नमाजी है, ये सवाल, मतलब ये बातें बता रहा है, इस बात से एक अंदाजा ये हो रहा है कि ये बस अकेले ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, बस अपने बारे में, और उसके आगे वो निकल नहीं पा रहा। तो लोगों ने जो दीन की तारीफ की वो बस खुद मुत्तकी होना है। अजीब मामला है। आप कभी, हमने एक कंपनी की मिसाल वगैरह दी, निरमा उरमा की, वो 10 लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कई करोड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी 10 से कई करोड़ पहुंच रहे हैं, और हम कई लाख और कई करोड़ जमा में अजादारी में होकर एक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी यहाँ हमारे पास ऑप्शन होने के बावजूद हम एक न, वहां 10 लोग जमा होके एक पूरी टीम, पूरी दुनिया में, आप छोटी छोटी कंपनी, भाई आजकल क्या हो रहा है, अमेरिका की एक कंपनी है, पूरी दुनिया पे उसने काम किया और हर जगह उसका ब्रांच है, हर जगह काम कर रहे हैं, हर जगह सारी चीजें पाई जा रही हैं, उनका जो भी है वो वही उनका इनकम का जरिया, काम भी मगर है ना। हमारे पास क्या है कि हम हैं रेगुलर सोसाइटी में, अजादारी सोसाइटी में कर रहे हैं, नमाज मस्जिद में सोसाइटी के बीच में है, मगर जो दीन ले रहे हैं वो अकेले वाला दीन ले रहे हैं, और खुश इस बात पे हैं कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं, हम बहुत बड़े रोजेदार हैं, हम बहुत बड़े हाजी हैं। ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो हम लोग, अब तक की जो बात का नतीजा निकलता है वो ये है कि अल्लाह ने हमें बनाया है सोसाइटी के दरमियान। इंसान की तारीफ ही यही है कि इंसान जैसे ही दुनिया में आया, ना चाहते हुए, कोई फुफ्फा है, कोई फुफ्फू है, कोई खाला, कोई खालू, कोई मामा, कोई मामी, ये रिश्ता, यानी एक साथ अकेले आदमी को 10-15 रिश्तों में रखकर एक सोसाइटी वाला माहौल दिया जा रहा, यानी जैसे ही पैदा हो गया वैसे ही इसे एक समाज मिल रहा है, एक खानदान मिल रहा है, एक अफराद, काफी लोग मिल रहे हैं। यानी बड़ी बात है कि पैदा होने वाले को कोई काम नहीं किया, फ्री में एक मामू मिल गए, कोई काम, कोई खास अपने कमाल की बुनियाद पर कोई उसका चचा बन गया ना, कोई कमाल की बुनियाद पर नहीं। उसकी पैदाइश फितरती तौर पर ऐसी हुई है, अल्लाह ने एक निजाम रखा कि जिसमें खुद ब खुद रिश्ता मिला, माँ बाप का मिला, भाई बहन का मिल गया, अजीजों का मिल गया, अकारीब सारे लोग मिल गए। इसका पूरा बचपने से लेके हर चीज सब कुछ उसी में गुजर रहा, मगर जब भी बात करता है तो वो अकेले आता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ खेल बहुत उलमा ताकीद नहीं करते हैं, बहुत से, जैसे क्रिकेट वगैरह का खेल, या हत्ता फुटबॉल वगैरह का भी खेल, उसमें अगर आप देखें, फुटबॉल में सिर्फ एक रोनाल्डो क्यों बनता है, एक ही मेसी क्यों है, एक ही सचिन क्यों बन रहे हैं, इसलिए कि होता क्या है, एक ही कोई हीरो बनाने के लिए लोग लगे रहते हैं। मगर उसके मुकाबले में आप आगे देखिए, बैडमिंटन को देखिए, या आप वॉलीबॉल को देखिए, वॉलीबॉल में कोई कह सकता है एक आदमी ने मारा है गोल, नहीं कह सकता। एक साथ 7 लोगों का उसमें, 7 लोगों की शराकत रहती है, सब मुश्तरक काम करते हैं, 3 मरतबा राउंड में वो कौन किसकी वजह से, मगर यहाँ कोई वो नहीं है कि एक ने सबसे ज्यादा मारा, यहाँ कोई गेम ही नहीं है। इसलिए बाज उलमा कुछ खेल पे भी आके बात करते हैं कि ये खेल भी हमारे समाज को खराब करने के लिए। अब ऐसे माहौल में जब हम रहते हैं, और ऐसे माहौल में हमारी मुश्किल ये है कि हम अच्छे नमाजी हैं मगर समाज के काम नहीं आते, अच्छे रोजेदार हैं, अच्छे हाजी हैं, सब कुछ, मगर समाज के। अब ये लिख के रख लीजिए, जो भी इंसान अकेला काम करता है उसकी कोई पहचान, उसकी कोई पहचान नहीं।
जब तक वो समाज में नहीं, आप दुनिया का कोई भी इनकलाब ले लीजिए, कोई भी अगर इनकलाब, तहरीक, कुछ भी ले लीजिए, एक तहरीक, एक आदमी ने हजारों लोगों को बेदार किया। जिसके पास मजहब नहीं है, दीन नहीं है, या माना भी तो गलत को माना, और आज वो दुनिया पर हुकूमत कर रहा। जिसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, मिले नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर कहीं नहीं है। आज शिया कौम या एक जमा जमा एक जगह पर एक फिक्र के लोगों को जमा होने का नाम है ना। यहाँ आप देखिए, जैसे एंट्री कीजिए लगता है सबसे ज्यादा इख्तलाफ इन्हीं में। सबकी वजह जो निकलती है वो यही है कि दीन को हमने इनफरादी समझा है। जब भी दीन को हमने अकेले अपने लिए सेकुलर वाला समझा, अगर हम दीन को एक इज्तिमाई कैफियत में देखेंगे, तो अब रहा मसला ये कि एक काम होना है, काम होने के लिए ओहदा मुझे मिले या ना मिले, किसी को मिले, काम तो हो रहा। मगर जैसे ही हम सेकुलर दीन के तहत जाएंगे, तो अब फोकस ये है कि अंजुमन का मालिक मैं ही बनूंगा, अगर नहीं तो अंजुमन चेंज कर दूंगा। अगर मुझसे नौहा नहीं पढ़वाया गया तो मैं खुद साहिब ब्याज हूं, एक दूसरी अंजुमन बना दूंगा। वहां मजलिसें, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। यहाँ नमाज जुमा सही नहीं होती है, हम लोग चाहते हैं दूसरी जगह का। भाई जहां गलती है, जहां मुश्किलात है, उसी को सही करो। कहां तक दूसरा मुकाबले में खड़ा किया जाएगा? यानी मुश्किल से इंसान को टकराना है, ये नहीं कि उसके बजाय एक और जगह तैयार कर दिया, 10 साल 20 साल के बाद पता चला सेम वही मुश्किल वहां हो गई। तो हमें उस मुश्किलात से टकराना है, ना कि एक उसके मुकाबले में एक दूसरी और बड़ी मुश्किल लाके खड़ी कर दे। हो क्या रहा है, हो ये रहा है क्या, जैसी मजलिस हो रही है, बहुत से लोग मजलिसों के मेयार को गिरा चुके हैं। तो अब हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं, तो एक नई मजलिस लेके आ रहे हैं, एक नई अंजुमन। नया में हमेशा कंपटीशन है, हमेशा जब भी काम होगा। उसकी मिसाल वैसे ही है कि जब भी दूसरा मुकाबले में जो टीम बनी है, जब भी काम करेगी, तो वो हमेशा उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। वो एक बड़ी छप्पेदारी कर रहे हैं, हम उनसे बड़ी करेंगे, तो यहाँ खुलूस तो खत्म हो गया ना। तो हमें जहां कमी है उसी को सही करना है। अब अगर हम गौर व फिक्र करें, इंसान जो भी काम अंजाम देता है, जो भी काम अंजाम देता है, या वो अकेले अंजाम देता है, तो अकेले किसी भी इंसान के काम का कोई मेयार नहीं। वो जाती तौर पर ठीक है, बहुत अच्छा नमाजी है, मगर सवाल ये है, समाज के लिए बनाए गए थे, समाज के लिए तुम्हें बनाया गया था, तुम समाज के काम नहीं आए, तुम लोगों की मुश्किलात को हल ना कर सके। इसलिए अब लफ्जों पे भी आप कुरान ये नहीं कह रहा है कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो ना, नमाज को कायम करो। कायम करना और पढ़ना दोनों में फर्क है। कायम मतलब अकेले नहीं पढ़ना है, एक समाज को उस तरफ लेके जाना है। किसी भी चीज को कायम करना, एक पूरा माहौल बनाना, लोगों को उसमें, अकेले मैं भी शामिल हूं उस कयाम में, मगर उस कयाम में कई लोग शामिल हैं। जैसे ही हमने अपने काम को देखा तो इंफरादी है, अकेले अंजाम दे रहे हैं। अकेले की बहुत ज्यादा अहमियत, और ज्यादातर 80-90% लोग जो दीन का मतलब समझते हैं खुद अकेले अच्छा होना, ऐसे अफराद ज्यादा किसी काम के नहीं। हो सकता है उनकी आकबत उनके थोड़े से ना अमाल की वजह से, मगर इमाम वक्त के ज़ुहूर में उनका कोई किरदार नहीं है। इमाम वक्त के ज़ुहूर में किरदार उन लोगों का होगा जो समाज के लिए खुद को कुर्बान करेंगे। हो सकता है वो अकेले बहुत अच्छा मस्जिद बना के उसी में बहुत अच्छा मुत्तकी परहेजगार उस मस्जिद का बन के चला जाए, वो ठीक है, मगर उसके दीन का असर दूसरों पर कुछ नहीं हो। या काम मिलकर होता है, कुछ जगह मिलकर होता है, और हम लोगों की जो पैदाइश है, जैसे तो हम लोग ज्यादातर मिल के काम अंजाम देते हैं, हम लोग ज्यादातर मिलकर ही माशरे में रहते हैं। मगर काम जो मिलकर भी अंजाम दिया जाता है, उसके अंदर भी मुश्किल ये है
کہ دو طرح کے ہیں، ایک لوگ صرف جمع ہوں اور ایک یہ ہے کہ نہیں جمع ہوں تو پلان کے ساتھ آئیں۔ جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ ہماری عزاداری ماشاءاللہ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ آتے ہیں، مگر کوئی پلاننگ نہیں ہے تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اور وہی دوسرے لوگ جو دوسری کمپنی ہے وہ جب کسی پلاننگ کے تحت آتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہو گیا۔ کام جمع ہونے والے افراد جو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، کئی جگہ ملتے ہیں آپس میں، تو وہ دو طرح کا کام، یا تو منظم پلان ٹارگٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اب ہمارے یہاں اگر عزاداری، اب دیکھیں عزاداری بہت اچھی جگہ ہے، نماز بہت اچھی جگہ ہے، مسجد بہت اچھی جگہ ہے، مگر یہاں سب سے بڑی مشکل وہی ہو رہی ہے کہ جیسے کرکٹ میں صرف ایک سچن بنا، ویسے ہی انجمن میں بس ایک ہی صاحب بیاض ہے۔ بھائی اگر انجمن سب ہیں تو پھر نئی جنریشن آ رہی ہے، دوسرے صاحب بیاض کو موقع دیا جائے۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ میں ہی ہر جگہ نوحہ پڑھوں؟ اگر میری انجمن کا چھوٹا بچہ جس کی آواز اچھی ہے وہ نوحہ پڑھے تو مجھے خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک ساتھ 50 نوحہ خان ہماری انجمن میں ہیں۔ مگر مشکل وہی ہے کہ ون مین شو والا حساب کتاب ہے، میں ہی ہوں، تو مشکل کیا ہوئی؟ مشکل وہی ہوئی، آئے اجتماع میں، سماج میں آئے، مگر فکر وہی سیکولر والی ہے، اس لیے اس سماج کو بھی سیکولر بنا رہے ہیں بہت بڑے نوحہ خان، اب بہت بڑے ذاکر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، مگر کیا ہے؟ فکر وہی ہے جس کا نقصان کہاں ہو رہا ہے، اس کو بھی اسی اعتبار سے۔ اب رہا مسئلہ انجمنیں، ہمیشہ انجمن اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، میں کانپور کی انجمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں جو ہندوستان کی ہر جگہ ایسا کام ہو رہا، صرف انجمن نہیں، الگ الگ ادارے لے لیجئے، آپ الگ الگ یوٹیوب چینلز لے لیجئے، آپ کسی کو بھی اگر سمجھنا ہے تو وہ دیکھیے کہ وہ دوسروں کے کام میں کتنا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ اگر دوسروں کا کام اسے اچھا نہیں لگتا اور اپنا کام اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 لوگوں کے ساتھ یوٹیوب چینل چلا رہا ہو، مگر فکر وہی ہے، فکر وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ ہی کو، بھائی کام اگر اچھا ہے، مثال کے طور پر آپ کی فیلڈ کتاب کی ہے تو کتاب آپ، میری فیلڈ مجلس کی ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو یہ دونوں ٹکرائے کیوں؟ یہ کہیں کہ بہت اچھا قلم ان کا ہے اور سامنے والا یہ کہ بہت اچھا بیان ان کا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سراہ لیں، مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں جو دوسرا ہے اسے اٹھنے نہیں دینا ہے، اس کی تعریف ہمیں پسند نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کام تو 100 لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر فکر وہی دین کی غلط ہم نے لی ہے، اور اس کا نقصان ہمیشہ ہوگا، جو بھی ایسا سوچتا ہے وہ ضرور اس کا نقصان ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کام اجتماعی ہی اہم ہے، انسان کو پہچان، اکیلے گھر میں کوئی نماز پڑھے اس کی کوئی پہچان نہیں، جماعت سے پڑھتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ متقی ہے۔ اسی طرح سماج میں آ کر عزاداری کرنے سے پہچان ملتی ہے کہ بھائی یہ سماجی ہے، مگر مسئلہ وہی ہے، اس میں دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ یا پلان کے ساتھ ہو یا بغیر پلان، بغیر پلان کے اب تک کیا جا رہا، اور ہم آپ سب دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بھی اس ادارے یعنی امامیہ یوتھ آرگنائزیشن کے تحت جو 32 سال سے چل رہا ہے، کافی لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے یہاں 2 سال 3 سال کلاسیں کی، اور لگا کہ اب سیکولر والا دن کافی ہو گیا ہے، اب چل دیا جائے۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک تعریف کے تحت ذکر کر رہا ہوں کہ کیا کسی کو بات اگر یہ سمجھ میں آ گئی کہ سماج کی مشکل یہ ہے تو اس کے لیے خود اس کو کوشش کرنا چاہیے، یہ نہیں نا کہ بار بار اسے متوجہ کیا جائے کہ نہیں تم میرے ساتھ چلو، نہ ساتھ نہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، مگر کام وہی کریں کہ جہاں پہنچ گئے وہاں کاروان بناتے چلے جائیں۔ کہیں پہ بھی کسی کی بھی تربیت 10 لوگوں کی ہوتی ہے، کس لیے کہ آج یہ 10 ہیں، یہ جہاں 10 جگہ جائیں گے یہ 10 پھر 100 کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، مگر مشکل کیا ہے؟ ہم کہیں نہ کہیں اتنا ہی سیکھ کے بس اپنا دین سیو کیا، اور بس اب دیکھتے ہیں آگے کبھی موقع ملا تو کر لیں گے، یہ ہمیں توڑنا پڑے گا،
اور رہا تعریف اور لعنت ملامت، دیکھیے آپ کے اچھے کام کی پہچان ہی یہی ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں۔ جب مولا کو کسی نے نہیں چھوڑا تو ہم کو لگ رہا ہے دعا دیں گے لوگ، کوئی دعا نہیں دے گا۔ تو ہمیں تو ایسے ہی سینہ چوڑا کر کے حوصلے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے کیا مشکل ہے۔ ہم ہر جگہ مشکلات کا حل نہیں کر سکتے، مگر ایک کام کر سکتے ہیں، 10 15 20 لوگ ایک مشکل کو حل کریں، ایک سماج کی ایک بڑی مشکل کو حل کریں۔ 10 15 20 لوگ وہ جو مشکل حل ہو رہی ہے۔ اب آج کل دیکھیے آپ، جتنے بھی لوگ ہیں ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کام بانٹ لیں، الگ الگ کام ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، جو انجمنیں صرف 2 مہینہ 8 دن کے لیے بنتی ہیں، سال بھر کے لیے بن جائے۔ انجمنوں کا عنوان یہ ہو جائے کہ یہ انجمن بیووں کا خیال کرے گی، یہ انجمن ایجوکیشن پہ کام کرے گی، یہ انجمن فلاحی کام کے لیے کام کرے گی، یہ انجمن فلاں چیز کے لیے، سال بھر کا کام مل گیا نا۔ بس 2 مہینہ 8 دن وہ کھایا پیا اور وہ جو بھی آیا اس میں بھی خط ایک پلان کے تحت ہو جائے گا نا، کہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ جڑے ہیں، اور پھر ہر مہینہ کسی بیوے کی مدد کے لیے، کسی کی دوائی کے لیے یہ کرنا پڑے گا نا کہیں نہ کہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، مگر ایک ماحول بنانے کے لیے ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ سوچنا ہے۔ اب جہاں تک ہم لوگ پہنچے وہ یہ ہے کہ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی کام بغیر لوگوں کے ساتھ رہے ہوئے ٹیم ورک کے ممکن نہیں۔ میں اپنا جملہ نہیں، اب ہم لوگوں کا جو سیشن ہوگا وہ سیشن یہی ہوگا کہ کوئی بھی کام اگر ہو تو ٹیم ورک ہی ہو، اگر ٹیم ورک نہیں ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کے جملے۔ ان کی ایک کتاب ہے کار باید تشکیلاتی باشد، انہوں نے اپنے خود اس شروعاتی میں ذکر کیا کہ میں نے کئی مرتبہ بڑے بڑے نخبگان جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں نے یہ کہا کہ جتنے بھی کلچرل کام ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں ایک تشکیلات اور ٹیم ورک کی صورت میں ہو رہے ہیں، ایک ٹیم کی شکل میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جب تک ٹیم کی شکل میں نہیں ہوں گے نتیجہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ پھر وہی جملہ وہی ہے جو مولا نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر مختلف ہو، اختلاف کر رہے ہو، تم حق پر ساتھ نہیں ہو۔ معاویہ کے لشکر میں باطل پہ ہونے کے باوجود لوگ متحد ہیں۔ آج سب سے اچھا دین پیش ہمیں کرنا چاہیے، سب سے اچھا اسکول کالج پڑھائی لکھائی جس فیلڈ میں بھی نام آئے، ہم لوگ کیا ہے تھوڑا دیر خوش ہوتے ہیں، کتنا عجیب لگتا ہے۔ آپ بتائیں کتنا عجیب لگے کوئی اگر ہماری تعریف یہ کرے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کے پردادا کئی 100 میل کی زمین کے مالک تھے، کتنا اچھا لگے گا۔ مگر یہ آج بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اچھی تعریف ہے؟ کتنی خراب ہے۔ ہم لوگ خوش اس بات پہ ہوتے ہیں چھٹے امام کے شاگرد نے بجلی بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ ٹھیک ہے، مگر آج ہم کہاں ہیں؟ جس علم کے ذریعے شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام مشہور ہوئے دنیا میں، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ مشہور ہوئے، آج مسلمانوں کو دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان پھر کہاں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ مگر ہاں ہمارے سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا، ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، کام دو طرح کا، کچھ لوگ گروپ کام کرتے ہیں، اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کام اگر گروپ کے ذریعے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ٹیم کے ذریعے ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں گروپ اور ٹیم کو ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں۔ کہاں لفظ میں کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کام ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے یا گروپ کے ساتھ؟ مطلب فرق کیا ہے دونوں میں؟ ٹیم پلاننگ کے ساتھ ہے
ग्रुप प्लानिंग के साथ नहीं। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों के सामने ये मजलिसें अज़ादारी हैं, जब भी काम जमा लोग होते हैं, इज्तिमाई और ग्रुप जब बनता है ग्रुप, उसमें क्या होता है, पहला फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, आशा जो हैं, सब अपनी फ़िक्र में लगे रहते हैं। ग्रुप में जब भी काम होगा तो अब यहाँ पे आपको एक फ़र्क कहाँ महसूस होगा? दुनियावी जितने भी काम जो भी अ, वो कंपनी-वम्पनी चलती है, उसमें इसी बात पे तो लड़ाई सबसे ज़्यादा है कि मेरी तारीफ़ हो रही है कि नहीं? एक एचओडी कभी है ना दूसरे को चाहेगा ही नहीं कि ऊपर आए। वहाँ लड़ाई किस बात की है? मैं ही सब कुछ हूँ, सब अपनी फ़िक्र में लगेंगे, अपनी फ़िक्र में है, मगर जब टीम की बात आती है, तो टीम में अपनी फ़िक्र नहीं है, सबकी फ़िक्र है। सबकी फ़िक्र उसमें जब एक टीम वर्क होता है, उसमें अपनी फ़िक्र वहाँ शील्ड जीतने की बात ही नहीं है। एक टीम वर्क हो रहा है, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, वहाँ अपनी फ़िक्र खत्म हो गई। दूसरा, जो ग्रुप वाले लोग होते हैं, वो किसी भी मकसद के हवाले से बहुत हसास और जिद्दियत नहीं यानी बहुत ज़्यादा उसके बारे में कोशिश और जिद्दियत नहीं पाई जाती है, हसास नहीं रहते हैं। हाँ, ठीक है, एक हो रहा जैसे अज़ादारी हमारे यहाँ हो रही है, बस एक मजलिस है, मौला आए चले गए। मगर यही अगर एक टीम वर्क हो जाए, तो टीम वर्क में हमें फिर प्लान करना पड़ेगा, मौला को बुलाने का तरीका क्या है? वैसी मजलिस पढ़वाएँ कि कहीं ऐसा ना हो बीच अगर इस तरह से मशवरा देता है, तो सारे लोग उस पे सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर इसने 1 हफ्ता वक़्त लेकर आके बताया कि राह हल इस मुश्किल का ये है, तो इसमें हम लोग गौर व फ़िक्र करें। या उससे हम कहेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करो कि भाई तुम किस चीज़ को पीछे बैकग्राउंड में रख के इस बात को कह रहे हो। वहाँ डायरेक्ट काटने की बात नहीं होगी। चौथा फ़ायदा है वो है कि जब ग्रुप में काम होता है तो वो क्या है कि एतमाद एक-दूसरे पे कम रहता है। टीम वर्क में अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, अब जो शाहिद हुसैन मीसम सा मौलाना शाहिद हुसैन मीसम साहब जो काम कर रहे हैं, एतमाद इतना ज़्यादा है कि ज़िया ज़ैदी साहब भी भरोसे पर हैं। अगर ये जो काम कर रहे हैं, वो भरोसे पे हैं। एक टीम वर्क की बात बता रहा हूँ कि भरोसा कितना ज़्यादा होता है। मगर वही ग्रुप में चले जाइए, वो फ़ौरन एतमाद उतना नहीं रहता है। उसके बाद गिरोह वाले में, ग्रुप वाले में जो है मामला वो या वहाँ ये है कि एक-दूसरे का लोग हमदर्द नहीं होते हैं। अब मैं ही देखो मैंने कितना अच्छा एक्टिव रोल प्ले किया, इसमें लगे रहते हैं। टीम वर्क में ऐसा नहीं है, सबका नाम आ रहा है एक साथ। टीम वर्क में अब इसमें कहीं किसी का ख़ास नाम नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, इन्होंने अपनी और सारे लोगों ने मिलकर एक ज़िम्मेदारी निभाई, एक काम हुआ। उसके बाद एक फ़र्क ये है कि जो भी ग्रुप का काम होता है, तो जब भी अगर मैं एक बात रख रहा हूँ ग्रुप में और मेरे मुकाबले में एक दूसरा तारुज़ वाली बात कर रहा है, मिसाल के तौर पर कि अगर मैं एक प्रोग्राम के लिए ग्रुप जो हमारा है छोटा-सा टीम वर्क मसलन अक्सर अज़ादारी जो किए जा रहे हैं, जो शब्बेदारी वगैरह उसमें टीम वर्क कम है, ग्रुप वाइज़ ज़्यादा है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि मौलाना में वसी हसन खां को बुलाना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। तो सामने वाला कहेगा, "अरे! गज़नफ़र तूसी को बुलाते हैं।" तो यहाँ पे जब बात टकराती है ना, तो एक-दूसरे के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए कि अब वहाँ इसी पे ज़ोर रहता है कि मैं इनको पसंद करता हूँ, इन्हें बुलाओ। वो एक-दूसरे के लिए नुकसान का ज़रिया बनते हैं, मगर टीम में ऐसा नहीं है, बल्कि टीम इसको फुर्सत समझ लेता है। जब भी तारुज़ आता है, तो लोग फिर उसके ऊपर सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए
और सामने वाला कहता है नहीं मैं कहता हूं ऐसा, तो लोग फिर सोचने पे मजबूर होते हैं। और ये भी इम्कान है कि बाद में गौर व फिक्र करने के बाद उसके नजरिए का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद ग्रुप में जो है वो सदाकत और सच्चाई नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है, लेकिन टीम वर्क में सदाकत और सच्चाई ज्यादा पाई जाती है। और सबसे अहम ये है कि ग्रुप का नतीजा आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा, टीम वर्क का नतीजा। जैसे मैं यहाँ पे नाम अगर लूं तो मौलाना मरहूम गुलाम अस्करी साहब ने एक टीम वर्क किया था जिसका नाम तंजीमुल मकातिब, तंजीम नाम रखा। नाम भी देखिए बहुत चुन के लफ्ज लिया, नज्म, तंजीम, अल मकातिब। उनका फोकस एक चीज पे था, इल्म और मकतब के हवाले से। ये हम लोग अपनी जिंदगी में अगर देखें तो हम लोगों को कोशिश ये करना है कि हम ये अपने अकेलेपन से निकलकर गिरोह में पहुंचे, ग्रुप से निकलकर हमें एक टीम तक पहुंचना है, टीम का हिस्सा बनना है। जैसे अब तक मिसाल दे रहा हूं, अब तक हम लोग यहाँ आते थे सीखने के लिए, आते हैं अभी भी सीखेंगे, इसलिए कि खुद की तरबियत भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। जब एक तरबियत हो गई तो अब हम प्लान करें, मसलन हम लोग बैठ के सोचे, हर आदमी की जिम्मेदारी है, ये बात शाहिद बाखरी की नहीं, जो जिस जगह रहता है। मिसाल दे रहा हूं, आपके इलाके और मोहल्ले में अगर गंदगी है, हम ये कहें कि बाहर वाली टीम आके करेगी, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अकीदा अगर समाज में मुश्किलात कई तरह से आ गए, बीमारियां कई तरह की, अकीदे लोगों के बातिल हो रहे हैं, हक गोई का मामला खत्म हो रहा है, कई तरह की बीमारियां आ गई हैं। अब सबसे लड़ने के लिए हम ये सोचे कि आखिरी इमाम आएंगे एक तलवार चला के सब ना, हमने क्या किया, अब इसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। हम उस महल्ले के बहुत अच्छे बड़े पढ़े और पावरफुल लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश करें। मेरा रोल उसमें यह हो कि मैं उन लोगों को जोड़ने में कामयाब हूं और एक मुद्दे के तहत उस मसले का हल करूं, लोगों को जमा करूं। हो सकता है बाज़ औक़ात पैसा लगे, बाज़ औक़ात हो सकता है पैसा ना भी लगे, सिर्फ लोगों को अपनी बात कन्विंस करना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। फिर उसके बाद यही धीरे 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 नतीजा मिलेगा, मगर शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करनी है। होता क्या है, होता यह है कि हमने पढ़ लिया, बहुत से लोग, आप देखिए बहुत से लोग अच्छे अच्छी पढ़ाई कर लिया, मगर उसके बाद वो दीन के मामलात में आगे नहीं आते हैं। डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छा, ये 5,000 रुपया ले लीजिए। आपका 5,000 रुपया अहम नहीं है, आप खुद समाज की एक मुश्किल को समझिए और हल करने के लिए आगे आइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो समाज। और उसके बाद बैठ के शिकवा करने का कोई फायदा नहीं है, अरे हमारे मोहल्ले और हमारे यहाँ तो आबादारी। सवाल ये है, आप पावरफुल हैं, आपकी एक पहुंच है, आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप क्या करते हैं, बस अरे मौलाना कहाँ बीच में किसी के पड़े, तो इसका मतलब ये आदमी किसी काम का नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ इस तरह के नजर आते हैं। अब टीम वर्क की जो तारीफ हम करते हैं आपके सामने, वो बहुत अहम है। टीम वर्क की तारीफ एक किताब के तहत हम लोग चलेंगे आगे, हम लोगों की बहुत अच्छी इसमें गुफ्तगू होगी। पूरी गुफ्तगू इस तरह से होगी कि टीम वर्क की तारीफ क्या है और क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, उसके आसार और बरकत क्या है, फायदे क्या है टीम वर्क के, फिर हर टीम वर्क को क्या जानना चाहिए, और एक सेशन ये होगा क्या नहीं होना चाहिए, क्या उस टीम वर्क में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी पे पूरी बहस होगी और बहुत अच्छी किताब। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये इस तरह के मफाहिम हैं जरूरी हम लोगों को एक जगह जमा करने के? ऐसा तो नहीं है ना कि वन साइडेड पूरी बात हो रही है और ये टीम वर्क भी कहीं अकेले में जा रहा हो। क्या कह रहे हैं ऑन भाई हमारे कमर साहब, आप क्या कह रहे हैं? आवाज मेरी पहुंच रही है कमर भाई? बस पहुंच रही है मौलाना। आवाज आ रही है। क्या साफ आवाज आ रही है।
तो ठीक है, टीम वर्क वाला ये टॉपिक ठीक है। तारीफ हम कर लेते हैं। तारीफ ये है, हम अकीदा, एक फिक्र के अफराद। आपको काम करने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, टीम वर्क में आपको अकीदा, आपकी हम फिक्र अफराद तलाश करने पड़ेंगे। अब जैसे हम लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, हम लोग इमामिया हर संडे क्लास में मिलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम फिक्र अफराद हम लोग आपस में यही 6 7 8 लोग हैं, जो भी हैं, 4 5 6 हम फिक्र अफराद चाहिए आपको एक, और एक मखसूस चीज को, सब चीज की तरफ नहीं जा सकते हम, एक मखसूस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग जमा हो, उसके अंदर उस काम के बारे में पूरी मालूमात हो, और एक दूसरे के साथ इस काम को अंजाम दिया जाए। जब एक दूसरे के साथ इस काम को अंजाम दिया जाएगा, सबकी जिम्मेदारियां बटेंगी, सब अलग अलग अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे, लोग अलग अलग चीजों को सोच के आएंगे। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दों पर हम लोगों को अभी इस बात पे यानी अगले हफ्ता हम लोग जब जमा हो, तो हम लोग ये सोचें, हम लोग कहीं और नहीं, मकबरा सिर्फ सोचें और कानपुर सोचें, अभी सिर्फ कानपुर। हालांकि रहबर कहते हैं कि वो लोग जो सठी और बहुत छोटी सोच रखते हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। आप कभी भी अगर प्लान करें तो अपने इलाके को मद्देनजर रख के नहीं, आप मंतके के एतबार से भी अगर काम करें कानपुर में, तो आपका टारगेट यहाँ से अमेरिका तक का होना चाहिए। आप ऐसे प्लानिंग अपनी और अपने काम को उस तरह से देखें। एक दूसरे ये है कि ये 5 साल के लिए ना देखें कि 5 साल में हमको ये नतीजा ना, हम ये देखें कि इस काम का फायदा हमको 100 साल के बाद क्या होने वाला है। यानी हमारा प्लान 100 साल के बाद के लोगों के लिए हो, 100 साल तक आने वाले लोगों की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए हो। यानी हम अपनी सोच को कितना ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, ये हमें इस टीम वर्क के काम में सोचना पड़ेगा। तारीफ बहुत सी है, तारीफ हमने कर दी, इसमें जो अहम ये सिर्फ फर्क बताया, और जो असल नतीजा है वो नतीजा यही है कि कोई भी काम जो आपको टीम वर्क के साथ नहीं, उसका फायदा नहीं है। ये रहबर ने बताया और कहा ग्रुप और टीम वर्क में फर्क क्या है। कहा टीम वर्क में, मिसाल बहुत अच्छी रहबर ने दी है, इतनी अच्छी मिसाल। कहा हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें कि हम कहीं अगर किसी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो हम गुम हो जाएंगे, हमारी कोई चीज कम हो जाएगी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं, बल्कि रहबर कहते हैं कि अगर कोई चीज, कोई इंसान टीम वर्क में जुड़ेगा, तो वो, उसका वजूद और मजबूत हो जाएगा, कम होने के बजाय उसका वजूद और ज्यादा होगा, नुकसान के बजाय वो मुस्बत में जाएगा। मिसाल बहुत अच्छी थी, मिसाल उन्होंने दी। कहा आप एक गिलास ले लीजिए, और एक गिलास में पानी है, और पानी, आप ईरान वगैरह अगर गए हो, या आप यहाँ पे गुड़ की मिसाल ले सकते हैं। ईरान में शक्कर का थोड़ा सा एक जैसे फ्लाइट वगैरह में कंद जिसे कहते हैं, शकरकंद जो मिलता है। कहा अगर इस शकरकंद को अकेले दांतों में रखा जाए तो हर तरफ से खटपट टूटने फटने की आवाज आएगी, और हर जर्रा ये बता रहा होगा कि मैं ये हूं, मुझे पहचानो, मैं आवाज करता हूं। मगर इसी कंद को एक गिलास पानी में जब मिला दीजिए, और उसके बाद उसे घोल दीजिए, और पूरे पानी में जब उसका वजूद मिल गया, तो अब सवाल ये है, इसके अंदर से कुछ कमी हुई या इसका वजूद और अच्छा हो गया? बल्कि अब इसने एक शरबत की शक्ल में मिठास देना शुरू कर दिया। अगर ये अकेले कंददांत के नीचे आ जाए, तो अपने आप में वो चीखता हुआ नजर आ रहा है, मगर जैसे ही एक पानी में घुल गया, अपने आप को ऐसा उसने उसमें अपने आप को रख दिया कि उसका वजूद मुकम्मल पानी की तरह हो गया। हुआ क्या?
फिर अब जो भी पी रहा है तो उसके साथ साथ पानी के साथ साथ उस कंद का भी खुद ब खुद एतबार बढ़ गया, उसकी अहमियत बढ़ गई, उसका वजूद बढ़ गया। वही टीम वर्क में होता है। टीम वर्क में हम अगर जुड़ रहे हैं तो हमारा कुछ कम नहीं होगा, बल्कि आप देखें कितना अच्छा है कि हम टीम वर्क में कुछ लोगों का नाम लें, कुछ टीम वर्क का जो लोग करते हैं उन लोगों का, और उसमें हम कहें उस टीम का मैं एक हिस्सा हूं, तो इससे और मेरा एतबार बढ़ जाएगा ना कि फला टीम जो सबसे अच्छा काम आज के दौर में 10 अच्छे काम है उसमें से एक अच्छा काम वो कर रही है और उसका मैं एक हिस्सा हूं। तो ये खुद ब खुद मेरा एक वजूद, मेरा एक एतबार, मेरी अहमियत खुद ब खुद बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हमें किसी भी तरह एक टीम की तरफ जाना है। सिर्फ उँगलियां उठाना ये आसान है कि समाज में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सवाल ये है कि हम उसके इलाज के लिए कितनी अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि लोगों को समझ में आए, हर बात लोगों को ज़रूरी नहीं है समझ में आए। मुझे समझ में, मेरा हाथ कटा है यहाँ, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा हाथ कटा है, तो अब इलाज मुझे खुद करना है ना। अब मैं ये तमन्ना करूँ कि मसलन गली में रहने वाला आदमी आके दवा दे, ये तो बेवकूफ़ी है। जब मुझे ये समझ में आ गई कि आज हमारे समाज में, खुसूसन हमारे एरिये की मुश्किल ये है, तो उसके हल के लिए हमें क्या करना है, प्लान क्या करना है, कैसे लोग मिलेंगे, उसके फ़वाइद क्या होंगे, उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, कैसे लोग टकराएँगे, उनका जवाब क्या देना होगा, फिर अपने मकसद में हम पीछे ना रहें, अपने मकसद में कहीं समझौता ना करें और आगे बढ़ते रहें। ये कहीं न कहीं हमें प्लान करना पड़ेगा। तो अगले हफ्ता हम लोग जो जमा होंगे यहाँ पर, आप अपने एरिये की, आप अपने खास जो मकबरे का है, जो कानपुर को टारगेट करें, कानपुर में सिर्फ प्रॉब्लम्स को ले कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी औलवियत सबसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। हो सकता है मुश्किल एक ही हो, उसकी वजह से 10 मुश्किलें और बढ़ी हों, तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। सिर्फ अभी हम लोग प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर हम लोग बैठ के डिस्कस करें। प्रॉब्लम ये है, सब लोग अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मिसाल के तौर पर ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद वाले हफ्ते में या उसके बाद हम लोग फिर इस पे जोर दें कि इसका राह हल क्या, फिर सबकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने एक मर्तबा इस बात को कहा था, तो उसके बाद ठीक ठाक लोग गायब हो गए थे, मगर इस मर्तबा नहीं, हमारी जिंदगी में यही है ही और कुछ नहीं। कहाँ हमारी कोई पहचान कहीं नहीं है अगर हम इस तरह से काम ना करके जाएं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ता हम लोग प्लान से आए और इस तरह की चीज़ों को सामने रखें। काफ़ी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आइंदा हम ज़िक्र करेंगे। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। माशाल्लाह बहुत कम लोग थे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और बहुत अच्छा टॉपिक लेके चले हैं। उसके साथ साथ जब तक ये पाँच छः हफ्ते में ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। और अफसान नई साहब की ये किताब है, तो के रोशनी में डिस्कशन हो रहा है। तो साथ ही साथ अगर हम लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ऑफलाइन, खासतौर से अगर ऑनलाइन वाले भी उसमें शरीक हो सकते हैं, तो साथ ही साथ जब तक ये 5-6 हफ्ते में कुछ हम लोग टीम तैयार करके हो जाए, खड़े हों, तो इस 5-6 हफ्ते का दस से ज़्यादा फायदा दिखाई देगा, और कोई भी प्रॉब्लम लेके हम लोग पर काम करें। चलो, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज। आज दुआ पढ़ा दें मौलाना साहब।